A very good morning to all the teachers who are present here. I like to thank you all for coming and assembling here, and especially I would like to thank our principal sir for giving me this nice opportunity to take this in-house training program. Okay, first of all, I would like to ask you one question. Which is the first school for a child education? Can anybody answer? I am giving you the option. First option is, okay. First of all, I would like to ask you a simple question, that is, which is the first school for a child education? Option is, first option is school, second option is family, third option is friends, and the fourth option is society. Yes, this is the very correct answer. Yes, family is the correct answer. See, we may have seen that those children who are coming in the school for the first time, when they are entering in the school campus, you will see that those children, they are very scared. You will see in their face that they are very looking terrified. Why? Why are they getting scared? वे बच्चे क्यों डरे हुए होते हैं जब वो फर्स्ट बार स्कूल के प्रांगण में अपनी पहली कदम रखते हैं? Because we know that the child who is coming in the school for the first time, he is not familiar with all different faces. वह बच्चा दूसरे चेहरे से वो फैमिलियर नहीं है, वो अनजान है. इस वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है. वो अपने आप को असमंजस महसूस करता है. ही इज फीलिंग अनईजी. सो वी सी मेनी चिल्ड्रेन, दे आर स्टार्टिंग टू क्राई, दे आर वीपिंग सो मच. ये बच्चे रोना शुरू कर देते हैं. So, after a lot of time, we see that those children, they are facing so many problems to mingle with the people over the school. Therefore, the CBSE has organized a preschool teaching methodology. इसलिए CBSE ने प्री स्कूल का ये लॉन्च किए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो एक होम जैसा इन्वायरमेंट उनको अपने विद्यालय में मिले. सो टुडेज टॉपिक इन द स्कूल हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज प्री स्कूल टीचिंग मैथडोलॉजी. आज का टॉपिक जो है वो प्री स्कूल टीचिंग मैथडोलॉजी है. Okay, now first we'll discuss what preschool means. Preschool का मतलब क्या होता है? A preschool, also known as nursery school. एक प्री स्कूल जो है उसे हम नर्सरी स्कूल के नाम से भी जाने जा सकते हैं या कह सकते हैं. और द प्री प्राइमरी स्कूल, हम प्री स्कूल को प्री प्राइमरी स्कूल भी कह सकते हैं. और प्ले स्कूल, you are aware of the play school. Now in our locality we see that there are lots of play school near our house town. अभी हम देख सकते हैं कि प्ले स्कूल जो है हमारे घर के निकट ही बहुत सारे ऐसे प्ले स्कूल खोले गए हैं. Now what is play school? प्ले स्कूल क्या है? It is an educational establishment or learning space offering early childhood education to children before they begin compulsory education at primary school. See,
Before the child enters into the primary school, they get their early childhood education. जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पहुंचता है, उससे पहले उन्हें चाइल्डहुड एजुकेशन दिया जाता है, मतलब जो फैमिली से रिलेटेड हो वैसा एजुकेशन दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है अपने आप को उसमें स्कूल में, अपने विद्यालय में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, उनको थोड़ा सा घर जैसा वातावरण मिले, ताकि वो बच्चा जो है बिना हेजिटेशन के, विदाउट हेजिटेशन, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर द टीचर्स टीचर्स इन द स्कूल, and also he will get familiar with all the school campus environment. Now we'll move to the next topic. What is the purpose of preschools? Preschools का उद्देश्य क्या है? प्री स्कूल क्यों खोले गए हैं? Why CBSE has opened preschool for children? Preschool provides an environment for children to explore, gain a sense of self, play with peers, and build self-confidence. प्री स्कूल जो है वो ऐसे वातावरण क्रिएट करता है हमारे विद्यालय में, ताकि वो बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट, जिस वातावरण को वो ढूंढ रहे हैं, वो वातावरण को स्कूल में भी, विद्यालय में भी मिले. एंड गेन ऑफ सेंस, इट मीन्स स्वयं को, अपने आप को समझना, बच्चे अपने आप को समझ सके कि मैं कहाँ आया हूँ और किस वजह से, किस पर्पस से, किस उद्देश्य से मैं विद्यालय में प्रवेश किया हूँ. एंड ऑल्सो प्ले विथ पियर्स, वह किस तरह अपने ग्रुप में शामिल हो जाए, किस तरह वे लोगों से घुल मिल जाए. एंड बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने आप में मतलब भरोसा होना चाहिए, वो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए. विदाउट एनी फियर, वो बिना डरे हुए वो सबों से मिलजुल कर रहना सीखे. सो दिस इज द पर्पस ऑफ प्री स्कूल, ये उद्देश्य है प्री स्कूल का. एंड चिल्ड्रेन लर्न दे कैन अकम्प्लिश टास्क एंड मेक डिसीजन विदाउट द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स. ऑल्सो बच्चे जो हैं वो सीखते हैं बिना किसी की मदद की, बिकॉज वी सी दैट इन द स्कूल एनवायरनमेंट देर आर नो पेरेंट्स सिटिंग ओवर हियर विथ अस. हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे साथ नहीं बैठते हैं कक्षा में, ना तो स्कूल के किसी भी ग्राउंड में आपको दिखेंगे. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर बच्चे को कोई भी चीज़ हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो वो पेरेंट्स को उसमें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, वो नहीं रहेंगे उनके पास. इसलिए बच्चे को खुद ही सीखना होगा कि मुझे कैसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे क्या करना होगा. ओके, ए चाइल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड, ही हैज़ टू फेस द सिचुएशन, वो हालात से उन्हें लड़ने के लिए सीखना चाहिए. One example I like to give you. Suppose that a child falls into the ground. मान लेते एक बच्चा जो गिर जाता है, ग्राउंड में गिर गया है, तभी हम उसे उठाने तुरंत नहीं जाएंगे, उन्हें सीखना होगा किस तरह मुझे गिर कर उठना है. He has to try that how should I be safe from the school campus. हमको किस तरह से खेलना चाहिए. और if he or she is playing in the swing, अगर वो झूला में खेल रहा है तो किस तरीके से उनको खेलना चाहिए, किस तरह से उनको झूला में झूलना चाहिए, सो डैट हिज बॉडी विल नॉट गेट इंजर्ड, ताकि उनको झूला से कोई चोट ना पहुँचे. Now next topic is preschool and kindergarten the same? Have you heard about the kindergarten? क्या आपने kindergarten के बारे में सुना है? Yes. In teachers, those who have got training in B.Ed,
you may have heard about the kindergarten school. Okay, so now today I will tell you the difference between preschool and kindergarten school. प्री-स्कूल अभी मैं बता चुकी हूँ उसके बारे में, ठीक है, और भी हम किंडरगार्टन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस. इन द यूएस के बारे में कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट, प्री स्कूल प्रोवाइड्स इनफॉर्मल एजुकेशन. यूएस में जो है प्री स्कूल दिया जाता है, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग स्कूल, अपने उनकी विद्यालय को शुरू करने से पहले उन्हें इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. whereas kindergarten is the first stage of compulsory education offered at the age of 5. लेकिन kindergarten क्या है, वो एक कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. जैसे हम लोग का यहाँ पे क्लास 1 से हम लोग का एजुकेशन स्टार्ट मतलब दी जाती है, वैसे इनको कंपलसरी एजुकेशन 5 साल की उम्र में तक उनको दी जाती है. तो ये हमारा एक किंडरगार्टन स्कूल हुआ. और प्री स्कूल जो है वो बिफोर 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 5 साल से पहले की उम्र वाले बच्चे को प्री स्कूल में एजुकेशन दी जाती है. ओके, लाइक प्ले स्कूल में बच्चा क्या करता है, वो तुरंत ही लिखना पढ़ना सीखता नहीं है. उसे पहले किस तरह स्कूल में बैठना चाहिए, किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए. ओके, अपने स्कूल को समझने में उनको टाइम दिया जाता है. नेक्स्ट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन. यही वह अंतर है प्री स्कूल और किंडरगार्टन में. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से अबाउट द प्री स्कूल. प्री स्कूल में बच्चों को वो शिक्षा दी जाती है, तुरंत ही उन्हें बोझ नहीं दिया जाता है. दे आर नॉट गिवन बर्डन ऑफ स्टडिंग. ओके, और दे आर नॉट गिवन एनी बर्डन ऑफ बुक्स, सो मेनी बुक्स. उन्हें बोझ नहीं दिया जाता है क्योंकि बच्चा जस्ट उनका अभी ग्रोथ होने का समय है. नाउ वी कैन सी इन द डीएवी स्कूल्स और मेनी स्कूल्स, सीबीएसई स्कूल्स, वी सी दैट while they are going to the bus they carry a heavy load of books. उनके पीछे बहुत सारा किताब भरा बस्ता होता है. ओके, एंड हिज एज इज सो स्मॉल, वो उनकी उम्र जो है बहुत ही कम है, बहुत छोटी है, फिर भी वो बहुत सारा वजन वो ढोकर जाता है. ओके, ही हैज़ टू कैरी दोज बुक्स बिकॉज इफ ही विल नॉट कैरी दोज बुक्स ही विल बी पनिश्ड इन द स्कूल. अगर वो बच्चा अगर किसी भी पुस्तक है या कॉपी उनकी छूट गई स्कूल में, वह नहीं ले जाता है तो विद्यालय में उन्हें पनिश किया जाएगा. ओके, सो हाँ, टू गेट अवे ऑफ द पनिशमेंट ही टेक्स ऑल दोज बुक्स एंड नोटबुक्स. उस पनिशमेंट से निजात पाने के लिए वो क्या करता है, बच्चा सारे रूटीन वाइज वो अपने पुस्तक और कॉपियाँ अपने साथ ले जाते हैं. बट लेकिन इससे क्या होता है कि वो बच्चे का जो हेल्थ होता है, हेल्थ ग्रोथ में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. ओके, ही इज़ गेटिंग अफेक्टेड टू हिज हेल्थ. ही कैनॉट ग्रो, हिज बॉडी इज़ अनेबल टू ग्रो वट एवर ही नीड्स, ही इज़ नॉट गेटिंग दैट. मतलब वो बच्चा का जो शारीरिक ये ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि समय से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा बोझ दे देते हैं. सो प्री स्कूल से क्या होता है, बच्चों को इतना ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता है. They only have to come into the campus and learn all the school environment. स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में उन्हें सीखना है, किस तरह रहना है लोगों के साथ में, कैसे हमको बैठना उठना है, हाउ टू गो टू वॉशरूम, और यू हैव टू लर्न द गुड वर्ड्स, लिटिल स्मॉल वर्ड्स. नेक्स्ट इज वाई प्री स्कूलिंग इज इम्पॉर्टेंट. अब प्री स्कूल हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, मतलब ज़रूरी क्यों है, इनकी इतना महत्व क्यों है. In the US,
प्री स्कूल प्रोवाइड्स इनफॉर्मल एजुकेशन। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि प्री स्कूल जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हम स्कूल जाने से पहले प्री एजुकेशन दी जाती है उनको, और किंडरगार्टन स्कूल जो है उनका बच्चों का सबसे प्रथम कंपलसरी एजुकेशन होता है, जो 5 साल की उम्र में तक में उन्हें दिया जाता है। और यही वो डिफरेंसेस है। Now the next topic is different preschool teaching methods and techniques used worldwide. It means दुनिया भर में विभिन्न शिशु विद्यालय द्वारा शिक्षण विधियाँ और तकनीकी का प्रयोग किया गया है। So we see that different kinds of preschools are open in this worldwide. पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि हमारे स्टेट में ही प्री स्कूल खोला गया है। ये प्री स्कूल जो है वो फॉरेन कंट्री से स्टार्ट हुआ है, ये लागू की गई है यूएस में, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं और वर्ल्ड है जहाँ पे प्री स्कूल खोले गए हैं। आज उनकी वजह से हमें भी प्रेरणा मिली हमारे भारत में, और हम जगह जगह पे प्री स्कूल देख सकते हैं, प्ले स्कूल देख सकते हैं। Okay, now we'll discuss about the different methods of teaching the students of preschool. प्री-स्कूल वाले बच्चे को किस तरह, किस मेथड में, किस विधि में हमें उन्हें शिक्षा देना है, ताकि बच्चे ध्यान से सुने और बहुत कुछ सीख सके उससे। फर्स्ट पॉइंट इज प्ले वे मेथड। A very widely accepted and popular method of play school teaching has been the play way method. ये play way method को ये बहुत ही अच्छा माना गया है और लोग स्वीकार भी किए हैं, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय विधि है पढ़ाने के लिए बच्चों को। Essentially, the school of thoughts believes that the best way of teaching a child is through taking up activities. इस मेथड से माना गया है कि बच्चों को हम बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप दिखाकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। You have to give some assignment so that the child can learn out of that. छोटे छोटे हम उन्हें गृह कार्य या तो क्लास के दौरान हम अच्छे उनको एक्टिविटी सिखा सकते हैं, जैसे पेपर से कुछ ये फिगर वगैरह बनाना या तो क्राफ्ट बनाना, उससे बहुत सारे चीज़ बच्चे सीख सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन रिलाई हेवी ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज रोल प्लेस। जो एक संस्था है, ये प्री स्कूल वाले जो संस्था है वो क्रिएट की एक्टिविटीज़ जैसे रोल प्ले है। हम देखते हैं हमारे जैसे स्कूल में ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और नेशनल हॉलीडेज़ भी है, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और रिपब्लिक डे बनाते हैं, चिल्ड्रन डे बनाते हैं, टीचर्स डे बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे स्कूल में। ओके, सो वी प्रोवाइड देम अ रोल, स्पेशल रोल। हमें उन्हें अच्छे रोल उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं उसमें वो पार्ट लेते हैं, और उससे क्या होता है बच्चे जागरूक हो जाते हैं। दे नो द कैरेक्टर दे आर प्लेइंग। जो भी रोल उन्हें दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आई मे से फैंसी ड्रॉप कंपटीशन, उसमें क्या होता है बच्चा को जो रोल प्रोवाइड किया जाता है वो बच्चा उससे अनजान है, लेकिन जब आप उसे वो रोल दीजिएगा तो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि वो महात्मा गांधी, जैसे एग्जाम्पल महात्मा गांधी का रोल दिया गया है तो वो समझ जाएगा वो बच्चा कि महात्मा गांधी कौन है और वो किस प्रकार का पोशाक पहनते थे। ओके, एंड हु वाज ही, वो कौन थे हमारे लिए। हाँ, ओके, सो ही विल नो दैट ही वाज द फादर ऑफ आवर नेशन। वो समझ जाएंगे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे हैं, 5 साल की उम्र से भी कम है, तभी उनको ज्ञात हो जाएगा कि ये महात्मा गांधी जो थे वो हमारे राष्ट्रपिता थे।
हाँ, फिर वो क्या करेंगे, हाँ, जो भी कैरेक्टर हैं, जो हमारे नेशनल लीडर हैं या तो हमारे जो भी मॉडल लीडर हैं, उनके बारे में वो जानेंगे और उसी प्रकार के मतलब उसी तरह के व्यवहार को अपनाना शुरू कर देंगे. Hence, while we are teaching, many of the students, they are also thinking, when we are asking them question, what you want to become when you are grown up, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप क्या बनना चाहोगे, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल, दे विल गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल. वो बोलेंगे कि मैं इस तरह का आदमी बनना चाहता हूँ. दे विल ऑल्सो गिव यू दे विल से यू दैट आई वांट टू बिकम लाइक यू. वो कहेंगे कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ. अगर वो आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मानते हैं तो आपको हो सकता है आपको भी वो सेलेक्ट कर ले. ओके, सो यू हैव टू प्ले अ गुड रोल बिफोर द चाइल्ड. नेक्स्ट इज वर्चुअल गेम्स. और ऐसे बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं. एंड द सिंगिंग. इन एवरी स्कूल वी सी देर आर म्यूजिक टीचर एंड डांस टीचर. They are providing some musical system so that and they are giving some training to students also from the childhood so that the children can learn, they can fulfill their hobbies. हाँ, जब भी अगर हमारे विद्यालय में अगर म्यूजिक टीचर होते हैं या डांस टीचर होते हैं तो उससे बच्चे भी क्या करेंगे, जो अनजान है इस चीज़ के बारे में, वो तो बस टीवी में ही देखते हैं, लेकिन स्कूल में आने के बाद क्या करते हैं, वो उस चीज़ को उनको ट्रेनिंग मिलती है. ठीक है, वो ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे लेकिन थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें क्या होगा, बच्चे को इंटरेस्ट मतलब आ जाएगा और वो क्या करेगा, हो सकता है वो आगे के लाइफ में अपना कैरियर के रूप में भी वो देख सकते हैं. वो सोचेंगे कि ठीक है मैं ये सिंगर बनूंगा और आई मे बिकम ए डांसर. एंड अ लॉट ऑफ मोर टू टीच चिल्ड्रेन. और ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम जिन्हें बच्चों को हम सिखा सकते हैं. इट इज़ बिलीव दैट सच ए मैथड ऑफ लर्निंग brings exposure to the child in a friendly environment with no pressure at all. अब इसमें देख सकते हैं प्ले वे मैथड में कि हम बच्चे को फोर्स नहीं करते हैं, हम उनमें दबाव नहीं डालते हैं कि आपको ये करना ही है. ओके, वी आर नॉट पनिशिंग देम, हम उनको सजा भी नहीं दे रहे हैं, उनमें स्वयं खुद ही इच्छा होनी चाहिए. ओके, देर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर शोइंग इन द स्कूल कैंपस. हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ बच्चों को दिखाते हैं. तो हर एक बच्चा जो है एक ही एक्टिविटी के पीछे नहीं जाता है, उनमें जो रुचि है, इफ़ ही हैज़ इंटरेस्टिंग देन ही विल कैरी ऑन द रोल. वो उसी रोल को प्ले करेगा जो उसमें जो रुचि है. ओके, सो वी कैनॉट फोर्स देम. हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं. अगर बच्चा जो है वो पेंटिंग करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है तो हम उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप पेंटिंग करके ही दिखलाइए. The focus is entirely on the needs of the child and the activities revolve around fulfilling such needs. Playway method has been widely accepted by educational institutions dealing with young kids in the age group of 3 to 5. Playway method जो है वो शिक्षण संस्था से इस चीज़ को स्वीकार किया गया है. 3 से 5 साल की उम्र तक के बच्चे को इनमें प्लेवे मेथड उनमें यूज़ करने के लिए कहा गया है. इट्स फर्स्ट फिट्स वेल विद द कमिटमेंट एंड एम ऑफ नॉट बर्डनिंग द किड्स विद टास्क दे आर नॉट येट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कार्य जो है वो बच्चे पर थोपना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती उन्हें बर्डन नहीं देना चाहिए. वी हैव टू सी दैट द चाइल्ड इज ही इंटरेस्टेड इन द वर्क. क्या वो बच्चा उस कार्य के लिए वो रुचि है उसमें दिखा रहा है. हाँ, इफ ही इज इंटरेस्टेड देन यू कैन डिप्यूट हिम द असाइनमेंट. Now next topic is Reggio Emilia method.
Another school of thought or method of teaching adopted is Reggio Emilia method. हमारे स्कूल के विचार से, प्री स्कूल के विचार से और एक मेथड इसमें बताया गया है जो लिया गया है, रिजियो एमिलिया मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है अभी हम देखते हैं। इट इज बॉल्व इन इटाली, इसे लिया गया है इटाली जो हमारा देश है। इनहेरेंटली दिस अप्रोच इज ऑल्सो बिलीव्स इन टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज़, ये भी विश्वास करते हैं कि हम अगर बहुत सारे अन्य कार्य देते हैं तभी बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखना शुरू कर देंगे। हाउ द अप्रोच डिफर्स इन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द कोर वैल्यूज इट प्रमोट्स। बच्चे जब ये कार्य करना सीखते हैं अलग अलग तरीके से, तभी उनमें आप देखिएगा कि खुद ब खुद स्वयं वो विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, द चाइल्ड इज गेटिंग इंस्पायर्ड ऑफ दोज वर्ड्स, बच्चे क्या करते हैं, उसे उनको प्रेरणा मिल जाती है, वो और भी सीखना चाहते हैं। द अप्रोच बिलीव्स इन एंड इज एम्ड एट enabling the child to make their own place in society। आप देखेंगे और आप विश्वास कर लेंगे, आप बच्चों को अपने समाज में देखते हैं तभी आप देखेंगे कि वह बच्चा जो है वो खुद ही अपना डिसीजन या तो अपना स्थान वो ग्रहण करता है सोसाइटी समाज में। हम देख सकते हैं कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। ओके, when you go to the party or some marriage function, you will see that some children when the music is played, जब वो म्यूजिक धुन बजाया जाता है, आप देखेंगे उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खुद ही जैसे म्यूजिक प्ले होता है वो बच्चा स्वयं वो नृत्य करना शुरू कर देता है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डांसेस ना। ओके, बहुत सारे ऐसे डांस है, लेकिन बच्चा क्या करता है, जैसे म्यूजिक सुनता है वो तुरंत ही उनका पैर थिरकना शुरू कर देता है और वो बिना कुछ सिखाए हुए वो बच्चा इतना अच्छा सुंदर से वो डांस दिखाता है सबके बीच में। ओके, ही इज़ नॉट हैविंग फियर, वो डरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें वो कौन सा कौशल है, वो नृत्य करने का कौशल है उनमें। सो देयर यू विल रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट, आप उसमें देखिएगा उस उतने भीड़ में एक बच्चा जो है कैसे वो डांस कर रहा है, तो आप उनकी टैलेंट को पहचानिएगा। एंड सम ऑफ द चिल्ड्रेन दे आर हैविंग द टैलेंट ऑफ टॉकिंग, कुछ बच्चे को बात करने की कला होती है उनमें, वो बड़ों की तरह ही बात करेंगे। The classroom acts merely as a catalyst that consists of material facilitating learning। और जैसे हमारे विद्यालय में हम हर एक स्कूल में देख सकते हैं, जैसे हम प्रवेश करते हैं, when you are entering in the class then you will see there are pictures on the walls। हम स्कूल के कक्षाओं में जैसे हम एंटर करते हैं तो देखते हैं कि दीवार में पोस्टर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर डेकोरेशन किए हुए हैं। See, all those posters or decoration who has made? किसने बनाई ये सारी चीज़ें? टीचर्स ने नहीं बनाए, लेकिन ये स्वयं खुद बच्चे ही बनाए हैं। So we can see their talents, हम उनकी गुण को देख सकते हैं। The children are encouraged to communicate through music, art, dance, writing and more। बच्चों को प्रेरणा मिलती है, वो आगे की ओर बढ़ते हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब संप्रेषण के थ्रू, मतलब एक दूसरे से हम बातें तो करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल हुआ। फिर है और एक मॉडर्न कम्युनिकेशन स्किल है वो म्यूज़िक के थ्रू। ओके, म्यूज़िक से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और दी आर्ट, कला उनमें देख सकते हैं, डांस देख सकते हैं, एंड राइटिंग स्किल ऑल्सो, एंड सो मेनी मोर टैलेंट्स। The parents are also involved in designing the curriculum and the entire progress of the child is recorded। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह बहुत मतलब अपने भविष्य में उन्हें क्या ऐसा सिखाना चाहिए ताकि वो अपना कैरियर उससे बना सके। ओके, ऑल द एक्टिविटीज़ द पेरेंट्स दे नोट डाउन। हमारे स्कूल में भी हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे बहुत अच्छे माता पिता होते हैं जो अपने हर एक एक्टिविटी बच्चे की मतलब वो देखते हैं
कि वो सही रास्ते में जा रहा है या नहीं, उनके लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। सो एवरी एंटायर प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा वो सीखता है उनमें जो उन्नति हो रही है वो हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हैं। Now the next topic is Waldorf method. Waldorf method is another popular method of teaching involved in Germany. ये Waldorf method ये जर्मनी में लिया गया है। The method focuses on enabling the child to grow through imagination. ये एक ऐसा मेथड है जो फोकस करता है स्पेशली कि कल्पना करने से बच्चों को काल्पनिक भी बनाना चाहिए। यू हैव टू लीव हिम एंड लेट हिम इमेजिन, ओके, वेर एवर ही इज गोइंग और वेर एवर ही इज सिटिंग, ही लेट हिम इमेजिन। थ्रू दिस इमेजिनेशन ही कैन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स। वो कल्पना करके बच्चा जो है बहुत कुछ सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, जैसे कवि जो है वो आप देखिएगा वो एकांत में बैठा रहता है, या तो वो नदी के किनारे बैठा रहेगा या भीड़ में ही बैठा रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल एकदम साइलेंट रहेगा, वो किसी से बातें नहीं करता है। ओके, देन यू विल सी हिम दैट ही इज एंगेज इन थिंकिंग, वो सोचता रहता है, ही इज डूइंग सम एक्टिविटीज इन हिज माइंड। ओके, ही इज नॉट सिटिंग एम्प्टी, वो खाली नहीं बैठता है। दिस स्कूल ऑफ थॉट्स बिलीव इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन। वो बच्चों के बीच में रह के भी अपने उसमें देखिएगा उनमें विकास हो रहा है, वो आगे की ओर बढ़ने के लिए उनमें आप उनमें काबिलियत देखिएगा। ड्यू टू थिंकिंग, क्योंकि वो सोचता है कि उन्हें क्या करना है। ए चाइल्ड मस्ट बी एबल टू यूज देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएट थ्रू इट। बच्चे को छोड़ देना चाहिए कि वो कल्पना करे, उससे सीखे और कुछ नया चीज़ उससे वो कल्पना करने के बाद क्या करता है वो बच्चा, वो उसे प्रैक्टिकली उस चीज़ को लाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक अ मूवी तारे ज़मीन पे। हैव यू सीन दिस पिक्चर? हाँ, दिस पिक्चर इज ऑल्सो वेरी नाइस। यू कैन सी चाइल्ड, you have not this Tare Zameen film, there is a small child who is demonized by the teacher. वो बार बार उसको तिरस्कार किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, बिकॉज ही इज नॉट ब्रिलियंट इन स्टडी। वो तेज नहीं है पढ़ने में बाकी बच्चों की तरह। एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो दे डिमोलाइज हिम। उनके माता पिता जो है उनको मानते नहीं हैं क्योंकि वो बच्चा जो है पढ़ाई में आगे नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे वांट्स देयर चिल्ड्रन दैट देयर चाइल्ड शुड ब्रिंग 100% रिजल्ट। सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा अंक आए, 100% रिजल्ट हो। दे आर नॉट लुकिंग देयर टैलेंट और एनी अदर क्वालिटीज़। अपने बच्चे के बाकी दूसरे गुण नहीं देखते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है या बेटी है हमेशा वो 100% आए ताकि लोगों के सामने वो बता सके। ओके, दे आर फीलिंग प्राउड टू स्प्रेड दिस, बट दिस पेरेंट्स दे शुड नॉट बी लाइक दैट। उन्हें टैलेंट को पहचानना चाहिए। सो इन दिस मूवी यू हैव सीन दैट the teacher, they are not recognizing his talent or they are not finding out why this boy, why he is not learning in the class. वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है बाकी लोगों के जैसा। ओके, एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन वी आर सीइंग दैट दे आर एक्टिंग एज एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मल की तरह बिहेव करता है और हम उसे क्या करते हैं, शिक्षक हम उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं। ओके, वी आर कंप्लेनिंग अबाउट हिम, हम उनके बारे में शिकायत करते हैं। सो ये रिजल्ट नहीं हुआ हमारा प्रॉपर रिजल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई दिस चिल्ड्रन इज बिहेविंग दिस, मतलब इस तरह वो बच्चा हरकत क्यों कर रहा है। ओके, हो सकता है उनकी फैमिली प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट्स। आप उनकी माता पिता से संपर्क कीजिए कि इनकी ऐसी जो स्वस्थ है सब बिगड़ने का कारण क्या है, वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है। इफ़ यू विल कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट्स दे विल ऑल्सो फील हैप्पी। और हो सकता है दोनों, लाइक वी आर हैविंग द पेरेंट्स मीटिंग, टीचर और पेरेंट्स बोथ वी आर हैविंग मीटिंग। सो
इन द मीटिंग वी कैन डिस्कस अबाउट द चाइल्ड, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और इसका समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ओके, सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड, अभी हम लोग को सहयोग करना चाहिए, ना कि उसके बारे में बुरा भला करना चाहिए। ओके, so in the picture you have seen the Amir Khan, he has supported the child, he found out the result, वो परिणाम ढूंढते हैं, मतलब किस वजह से, कारण ढूंढते हैं कि किस वजह से ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है। ओके, the children are told stories, taken for walks, made to play games and create toys out of available materials। अतः बच्चों को अभी हम देख सकते हैं कि हर स्कूल में कहानियाँ बताई जाती हैं, टेकन फॉर वॉक्स, और कभी कभी घूमने के लिए भी हम ले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल पिकनिक्स, छोटे छोटे डिस्टेंस में हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ले जाते हैं पार्क में घुमाने के लिए। मेड टू प्ले गेम्स, और वहाँ पर जाके हम बच्चों को खेलना सिखाते हैं। क्रिएट टॉयज आउट ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स, और कुछ ऐसे टॉयज हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक क्ले मैथड, जो मिट्टी का जो होता है, जो मिट्टी से हम लोग, बच्चे क्या करते हैं बचपन में उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम स्कूल में, विद्यालय में क्या करते हैं, उसी मिट्टी से, क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम उन्हें सिखा रहे हैं। ओके, सो वी आर टेकिंग दोज soil and we are giving to those children and telling them to make some toys। उसे क्या बोलते हैं बच्चे को कि आप इस मिट्टी से आप कोई भी खिलौना बनाइए। then you will see how those children they are very interesting, मतलब they are interested in making those toys। वो बहुत सारे ऐसे आकृति बनाकर दिखा सकते हैं, खिलौने बनाकर मतलब दिखा सकते हैं। the method of teaching kids grounds itself on the fact that reading, writing are not to be introduced to children of such a small age। अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो तुरंत ही आप उनको चॉक या पेन मत थमाइए। ओके, बिकॉज ही विल नॉट फील इजी, उन्हें बहुत टफ लगेगा पकड़ना, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। यू हैव टू यूज सम डिफरेंट मेथड्स टू टीच द चिल्ड्रेन, यू हैव टू ब्रिंग इंटरेस्ट इन हिम, आपको उसमें रुचि लाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा स्वयं, आप फोर्स भी नहीं करेंगे और वो बच्चा आपकी बात मानना शुरू कर देता है। स्मॉल एज एंड द एजुकेशन मस्ट बी एंटायरली ओरल एंड रिप्लेट विथ क्रिएटिव इमेजिनेशन। एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए आप उन्हें ओरली भी सिखा सकते हैं। सपोज दोज पेरेंट्स हु आर नॉट गेटिंग टाइम टू टीच देयर चिल्ड्रेन, मानते हैं कि कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं सिखाने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक, जैसे मम्मी उनको बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, तो वो अपने बच्चे को काम करते दौरान भी सिखा सकती हैं। ओके, वाइल शी इज इन किचन शी में रिपीट द पोएम, वो पोएम को गा कर वो रिपीट कर सकती हैं, और वो बच्चा जब अपनी मम्मी की आवाज़ सुनता है, धुन सुनता है, तो बच्चा खुद ही सीखना शुरू कर देगा, वो उनके पीछे पीछे रिपीट करेंगे। Okay, then every day if she will repeat the same thing, child also will learn the same thing। Okay, for example we can take when you are playing the music or you are showing some cartoon, you are letting the TV open, then you will see that some child they are listening the sound of that cartoons, वो उस कार्टून का आवाज़ को सुनता है और वो सीखता है। Okay, and we can see those very small children, they are learning perfect language of Hindi also, शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर देता है। even we also can't speak, हम बड़े भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे वो कार्टून को देखकर शुद्ध हिंदी बोलते हैं, and English also। so this cartoon program is shown so that children can learn the languages बिना कुछ एफर्ट से। वो टीवी क्या कर रहा है, बच्चों को सिखा रहा है। Like that only we parents also, we should teach the children to be creative imagination, कल्पना करने के लिए बच्चों को सिखाना चाहिए, उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। There are also different age group for which separate curriculum is subscribed। हर एक एज ग्रुप में, हर एक उम्र वाले बच्चों को अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, उनको वैसा ही एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। These age groups are 0 to 7,
7 years, 7 to 14 एंड 14 to 18 एज ग्रुप यहाँ ये बांध दिया गया है। जैसे 0 से 7 तक की उम्र के बच्चों को अलग ये करिकुलम प्रोवाइड करना है, और 7 से 14 ईयर्स और 14 to 18 ईयर्स। जैसे हम देख सकते हैं इन साइंस सब्जेक्ट दे आर गेटिंग सम प्रोजेक्ट्स। बच्चों साइंस विज्ञान में वैसे ही प्रोजेक्ट प्रोवाइड की जाती है कि बच्चा उसमें अपने से दिमाग लगाकर वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सके। साइंस एग्जीबिशन वी कैन सी इन द स्कूल में साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ देख सकते हैं हर एक एज ग्रुप वाले बच्चे जो है अपना मॉडल वो प्रेजेंट करते हैं। Now the next 4 point is Montessori method. You may have heard about the Montessori method. Okay. Named after Maria Montessori. ये Montessori नाम आप लोग सुने होंगे। ये मेथड जो है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ही, मतलब उन्हीं के नाम पे ये मेथड चलाया गया है। दिस सी वॉज द फर्स्ट वुमेन फिजिशियन, वो पहली वुमेन थी। दिस मेथड in its essence deal with developing the personality of a child through sensory learning. इस मेथड से बच्चे की जो पर्सनालिटी होता है, उनकी व्यक्तित्व होती है, ओके, मे बी फ्रॉम फिजिकल अपीयरेंस, उनकी जो बॉडी है मतलब किस तरह बोलचाल की, या तो किस सही तरीके से वो मतलब किस तरह अपने लोगों के सामने पेश होना, कैसा बिहेवियर करना, और सेंसरी मेथड मतलब वो किस तरह से अंदर से ज्ञानेंद्रिय मतलब अंदर से वो सोच कर अपना जो भी भावनाएं उसको प्रकट कर सके। विच इंक्लूड्स टचिंग, बच्चे को सिखाया जाता है टचिंग मेथड से, ठीक है, छू कर एहसास करना, स्मेलिंग सुनकर एहसास करना, फील करना, और सीइंग देखकर, टेस्टिंग रादर देन लर्निंग एंड रीडिंग, मतलब सीखने के लिए या पढ़ने के लिए, उसके अलावे ये सारे चीज़ें से जो हमारे बॉडी में द सेंस ऑर्गन वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन जो है उससे हमें अनुभव करना है, ओके। द क्लासरूम इंक्लूड्स सच सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल्स द यूज ऑफ विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर्स। हमारे विद्यालय में ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं वैसे सारे बच्चों के लिए जो असमर्थ है किसी ना किसी कारणवश, जैसे कोई बच्चा जो है वो देखने में असमर्थ है या तो सुनने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, देन दे आर गिविंग सम स्पेशल एड्स। हाँ, टीचर्स के द्वारा ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है ताकि वो बच्चा जो है वो समझ सके वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। द एक्टिविटीज आर मोर वर्क बेस्ड rather than play based in the sense that the focus is more on reducing errors, promoting concentration abilities among children। बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ वो किस तरह से वो कंसंट्रेट कर सके अपने कार्य में, उतनी भीड़ में भी बच्चे क्या करेंगे, कंसंट्रेशन पावर उनमें हो। एंड वी ऑल्सो नो डैट इफ़ वी मेक मोर मिस्टेक्स देन वी लर्न मोर। अगर हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं तो गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो गलतियां करने से बच्चों को मारना या पिटना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट बीट देम, बिकॉज इफ ही विल लर्न टू मेक मिस्टेक देन फ्रॉम दैट ही विल लर्न दैट वी शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ वर्क, वी शुड ट्राई इन डिफरेंट वे। उन्हें पता चल जाएगा कि इस तरह से हम ऐसा काम किए तो मुझसे गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट रिपीट द सेम एरर। दूसरी बार वो बच्चा जो है वो इस तरह का गलतियां वो रिपीट नहीं करेंगे। ऑल्सो सिंस इट एम्स टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटीज चिल्ड्रेन, द क्लासरूम एंड मटेरियल इज एस्थेटिकली डिजाइन एंड गिव्स अ होम लाइक फीलिंग टू चिल्ड्रेन। और हम विद्यालय में देख सकते हैं कि बच्चों को हम ऐसा महसूस कराते हैं कि वो अपने घर की तरह
बाकी जैसे घर में रहते हैं वातावरण जैसे इनको मिलता है वैसा स्कूल एनवायरनमेंट में भी मिले। इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो जल्दी सीखना कोशिश करता है। Next point is number 5, Bank Street method. Now Bank Street method. Now I'm saying about the bank. You may be thinking that what is bank, where we are keeping depositing the money. आप सोच रहे हैं बैंक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बैंक मतलब जहाँ पैसा हम जमा करते हैं। No. See, Bank Street method, what it is also among various methods adopted by teachers. ये भी बाकी जो विधियां हैं बच्चों को सिखाने का, इसी तरह की विधि अपनाई गई है टीचर्स के द्वारा। टू एनेबल चिल्ड्रेन टू लर्न, बच्चे इससे सीख सकते हैं। एंड द मेथड एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इससे क्या हो सकता है, बच्चा जो है वो अनुभव करके सीख सकता है। ओके, ही विल एक्सपीरियंस हिज फर्स्ट हैंड, मतलब वो पहला जो उनको कार्य मिलता है उसे वो सीखता है, वो अनुभव करके। एंड द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बैंक स्ट्रीट मेथड एंड द प्ले वे मेथड इज द नेचर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व। हम प्ले वे मेथड पढ़ चुके हैं और अभी बैंक स्ट्रीट मेथड पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। हाँ, ये डिफरेंसेस क्रिएट किया गया है, नेचर को बताया गया है, ये प्राकृतिक से सीखना है इसको। द फॉर्मर कंटेन्स एक्टिविटीज लाइक पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्ले, ईटीसी। ये एक्टिविटी ये ऐसा है जिसे बच्चे प्राकृतिक रूप से वो सीख सके, प्राकृतिक चीज़ से वो सीख सके। जैसे हम पजल्स बनाते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स, बच्चे को देखेंगे ना मिट्टी से खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द क्ले की मिट्टी के बारे में डिस्कस किए थे, और अभी फिर इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक अलग अलग, जैसे 5 तल्ला 6 तल्ला बिल्डिंग होता है, तो बच्चे को देखेंगे उस तरह वो निर्माण भी कर रहे हैं। हाँ, विच एनेबल्स ए चाइल्ड टू एक्सपीरियंस अ गिवन प्रॉब्लम। जब भी बच्चा जो अगर मिट्टी का कोई भी चीज़ बनाता है तो देखेंगे मिट्टी का जो आकृति बनाए हैं वो किसी कारणवश नीचे गिर जाता है तो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, फिर से वो सोचता है कि किस वजह से वो उनका जो बिल्डिंग बना था वो गिर गया, तो इससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम से वो निकलना शुरू करता है, वो खुद ही कोशिश करता है कि कैसे बनाया जाए कि वो मेरा जो मॉडल बना हुआ है वो नहीं बिगड़े, वो ठीक से खड़ा हो जाए। सो व्हेन अ प्रॉब्लम्स कम्स इनटू आवर लाइफ, जब भी समस्या अगर आती है हमारे जीवन में तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इफ प्रॉब्लम कम्स देन यू शुड बी हैप्पी, यू शुड फील अ गेट। आपको खुशी महसूस होना चाहिए कि हमारे पास समस्या आया है। समस्या आने से क्या होगा, यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, आप अनुभवी हो जाते हैं और आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं। So we should let our child to face the problems and come out themselves. हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को जब भी समस्या आ जाती है आप तुरंत दौड़कर उन्हें हेल्प मत कीजिए। लेट हिम ट्राई, आप देखिए कि किस तरह उससे वो निकलने की प्रयास कर रहे हैं। व्हाट आर द आइडियाज ही इज टेकिंग, किस तरह का विचार वो ले रहे हैं अपने मन में, वो कैसा निकलना चाह रहे हैं। बिकॉज ही विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस, उनको हमेशा लाइफ भर हमेशा याद रहेगा कि मैं इस तरह का प्रॉब्लम हम फेस किए थे, हम कैसे उससे निकले। ही विल फील हैप्पी टू एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, वो दूसरों के सामने अपने समस्या को बताने उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो बताएंगे कि किस तरह हम निकले बाहर। एंड इन हिज फर्दर लाइफ ऑल्सो ही विल नो हाउ टू टैकल हिज प्रॉब्लम, वो आगे जो बड़ी समस्या आएंगी उससे निकलने के लिए भी वो सीख जाएंगे। इफ पेरेंट्स, वो अगर पेरेंट्स जो है बार बार उनकी अपने बच्चे को मदद करते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो अपने तक में सीमित रह जाएगा। ही विल नॉट एबल टू लर्न, वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। एंड एवरी टाइम ही विल फाइंड समवन वेदर हिज फ्रेंड्स और हिज पेरेंट्स टू हैंडल ऑल द प्रॉब्लम। वो बार बार जैसे बाहर चला जाता है तो वो सोचेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम समस्या आ गया है, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मैं अपने माता पिता को बुलाऊंगा।
एवरी टाइम और एवरी प्लेस पेरेंट्स कैन नॉट अटेंड, हर एक जगह माता पिता नहीं हो सकते हैं. सो वी शुड ट्राई टू मेक देम, लेट देम फ्री, उन्हें आप खुले छोड़ दीजिए, आप सीखने का मौका दीजिए उन्हें. Thus, to conclude, there are various other methods of teaching too that have been adopted by different institutions around the world. तो हम विश्व में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी विधियाँ जैसे अभी पढ़ें, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, कौन सा विधि से कौन सा विधि हम उनमें अप्लाई करेंगे कि बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए. तो ये संस्था ऑर्गेनाइज की गई है पूरे विश्व में. ऑल्दो different in approach, it is not always the case that this method can be compartmentalized into clearly distinct ways of teaching. A lot of times different approaches can correspond at a certain level and also depending on the need of various children. However, what these different methods reflect is the effort on the part of the institution to deal with the needs of the child. तो बच्चा क्या करेगा, इसमें हम देखेंगे कि इन्हें अगर हम बहुत सारा विधि सिखाते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, प्रैक्टिकली ही विल ट्राई टू यूज दिस मेथड. वो बच्चा खुद ही उस जो भी विधि हम पढ़ाए उन्हें सिखाए हैं उस विधि को वो अपनाने की कोशिश करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस चीज़ को अपनाएंगे वो. एंड दिस मेथड्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ एंगेजिंग एक्टिवली विद अ प्री स्कूल फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड. तो ये जो मेथड हम अभी जैसे डिस्कस किए हैं तो प्री स्कूल में इसे लागू किया गया है ताकि उस एक्टिविटी से बहुत कुछ सीखा जा सके. Now the next point is fun literacy activities for preschoolers. It means प्रीस्कूलर्स के लिए मज़ेदार साक्षरता विधियाँ. बच्चों को सिखाने के लिए आप हमेशा उन्हें बोर नहीं करा सकते हैं. आपको कुछ सिखाना है तो आप हमेशा टीचिंग मेथड हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं और दी लेक्चर मेथड. हमें बोलने वाला जो कार्य होता है बच्चों को सिखाने वैसा काम मतलब वैसा नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि बच्चे जो क्या होते हैं बोर हो जाते हैं. ओके, सिटिंग इन अ वन प्लेस, वो एक ही जगह बैठा कर बच्चों को सिखाना वो उन्हें अनईजी फील होगा. सो दे आर अप्लाइंग द फन लिटरेसी एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूलर. ऐसे बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसकी वजह से बच्चे तुरंत ही कैच कर पाएंगे, खेलते खेलते बच्चे सीख पाएंगे. फर्स्ट वी आर टेकिंग द किक द लेटर कप. Kick the letter cup. This pre-cake activity suggested by fun learning for kids combines letters with sports. ये जो खेल है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. टेक अ स्टैक ऑफ प्लास्टिक कप. यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे प्लास्टिक कप लीजिए, ओके, छोटे छोटे कप लीजिए एंड राइट अ सिंगल लेटर ऑन ईच. हर एक कप में आप एक लेटर लिखिए, अल्फ़ाबेट लिखिए. देन लाइन द कप्स अप इन अ रो. और जो कप जितने भी कप हैं उसमें लेटर्स लिखे हुए हैं उसको लाइन में कतार में आप लगा दीजिए, रो में पंक्ति में लगाने के बाद स्प्रेड देम आउट ए बीट और उसके बाद उसे पूरा फैला दीजिए. गिव योर चाइल्ड ए स्मॉल सॉसर बॉल और एनी सॉफ्ट बॉल. और उस बच्चे को आप एक बॉल दीजिए, मुलायम बॉल दीजिए. एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू किक द बॉल टूवर्ड्स द लेटर कप. और जो जिस भी कप में लेटर लिखे हुए हैं उसी कप में आप उसे हिट करने के लिए कहिए. वंस दे नॉक ए कप डाउन इंस्ट्रक्ट देम टू से द नेम ऑफ द लेटर ऑन द कप. और जैसे ही बच्चा वो उस कप को किक मारता है, किक मतलब होता है लात मारना, ओके, या ठोकर मारना. व्हेन अ बॉय और अ चाइल्ड हिट्स द कप एंड यू से हिम, जब वो कप जो है वो गिर जाता है उस प्लेस से तो आप उससे पूछिए, यू आस्क ए चाइल्ड
विच कप यू हैव ड्रॉप, आपने कौन सा कप को गिराया है, कौन सा लेटर वाला कप को गिराया है। इससे क्या होगा, बच्चा वो उस लेटर को सीख जाएगा बोलने के लिए। ओके, ही विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज, वो समझ जाएगा कि ये कौन सा लेटर था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ABCD को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, सो टू मेक चिल्ड्रन लर्न यू हैव टू यूज दिस मेथड, सी द लेटर फर्स्ट एंड सी इफ दे कैन एम फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग कप। और इसी तरह बाकी जो है वैसा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तो बच्चा क्या करेगा, वो अल्फ़ाबेट सही तरीके से सीख जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कलर सॉर्टिंग लेटर्स। कलर सॉर्टिंग लेटर मीन होता है रंग छटाई। कलर को अलग अलग, कौन सा रंग है आप, यू कैन मेक चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द कलर, नेम ऑफ द कलर। Practice color and letters together with this preschool activity for no time for flashcards. All you need is a printable rainbow, time colored label stickers, markers. Use the markers to write one letter or each circle stickers. आप इसमें मार्कर यूज़ कर सकते हैं। एंड गिव द चाइल्ड द स्टिकर शीट, आप उनको स्टिकर शीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्ट देम टू पील ऑफ इस स्टिकर, वो स्टिकर जो प्रोवाइड किए हैं आप चार्ट में, आप हर एक स्टिकर को बोलिएगा वहाँ से उठाइए, मतलब ये जो फेविकॉल जैसा चिपका हुआ रहता है, आप उसे क्या करने बोलिए, उनको वहाँ से हटाने बोलिए। एंड से द लेटर एंड स्टिक इट, और उसके बाद वो लेटर जो आप स्टिकर से उठाए हैं आप उनको कहिए कि वो कौन सा लेटर है। देन अगेन यू टेल हिम टू स्टिक इट, और उस लेटर को फिर से आप चिपकाने कहिए। ऑन द अदर पार्ट ऑफ द रेनबो विद द मैचिंग कलर, और कि रेनबो ड्रॉ किया हुआ है, आप उन बच्चे को बोलिए कि वहाँ जाकर आप चिपकाएं। दिस हेल्प्स लिटिल वंस टू वर्ड्स लेटर रिकॉग्नाइजेशन, इससे बच्चा क्या करता है, वो अल्फ़ाबेट को सीख जाएगा। एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन, अक्षर को तो सीख गया है, प्लस वो कलर को भी वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो कौन सा रंग का है। बिकॉज इन रेनबो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, 7 कलर्स। तो बच्चा जो है कलर का नाम भी वो सीख जाएगा और वो लेटर भी सीख जा रहा है। तो इस मेथड में क्या हुआ, कलर सॉर्टिंग लेटर में वो दो चीज़ सीख जा रहा है, लेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए और कलर भी। नंबर 3 इज अल्फ़ाबेट पिलो जंपिंग। अब पिलो यू कैन अंडरस्टैंड, पिलो क्या होता है, तकिया, एंड जंपिंग मीन्स कूदना। You have to use this method if your kiddos need to burn off some energy. This letter activity toddler proved to be perfect. Use a stack of paper plates. आप पेपर प्लेट लीजिए and write one giant letter on each one. पेपर प्लेट लीजिए और बड़ा बड़ा अक्षर लिखिए इसमें। Then use packing tape to secure each plate to pillow. Spread them around the room. और एक पैकिंग टेप लीजिए और पिलो लीजिए, वो प्लेट को पिलो के पास रख दीजिए, मतलब पिलो में ही अटैच कर दीजिए और सारे रूम में फैला दीजिए। हैव द किड्स स्टार्ट ऑन द साइड ऑफ द रूम एंड ट्राई टू जंप ऑन अदर टचिंग द फ्लोर। अब वो बच्चे क्या करेंगे, आप उनको बोलिए कि आप वहाँ पे हर एक कोने में वो जाए अपने रूम में और वो जंप करना शुरू कर दें। हर एक ये जो फ्लोर है उनको टच करने का ही, वो बच्चा जो खुदकना शुरू कर देगा। ईच डे एज दे जम्प टू ईच न्यू पिलो दे हैव देम से द लेटर और लेटर साउंड। जैसे वो बच्चा हर एक पिलो में वो कूदना शुरू कर देता है, वो क्या कहेगा, वो बोलता जाएगा। जैसे आप सपोज डैट द चाइल्ड हैज स्टेप इन लेटर एल, मान लेते वो बच्चा जो है लेटर अल्फ़ाबेट एल में वो जंप किया है, तो वो खुद ही बोलना शुरू कर देगा कि एल, नाउ आई हैव कम टू लेटर एल, मैं एल में जंप किया हूँ। इसी तरह वो अल्फ़ाबेट भी सीख जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 4, कनेक्ट द डॉट्स विथ लेटर। दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड। हम लोग डॉट मेथड भी यूज़ किए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है। एग्जामिनेशन ऑल्सो वी आर गिविंग। हाँ, सो हैंड्स ऑन एज वी ग्रो, वी आर अप्लाइंग दिस टू मेक चिल्ड्रन लर्न हाउ टू यूज़ द रूल पेन, मतलब वो रूल जो है वो पेंसिल वो कैसे घुमाना शुरू करें। ओके, सो वी आर यूजिंग द डॉट। Good, all connect the dots, get RAM, and you write a handful of repeating letters in random pattern down a
butcher paper, kids can connect the letters in any way. इसी को जरूरी है और आप लोग इसी में शोरगुल कर रहे हैं। नर्सरी क्लास में गए, प्ले स्कूल में हमारे बच्चे जाएंगे, क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको जानिए। क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं, सिर्फ एबीसीडी का को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने का और कितने तरीके हैं। So we can teach those children using the dot method. You can also make stars, है ना? You can also make stars on their copies so that they will join all the stars and form some words, or they can draw some picture also. Next is alphabet knockdown. Toddler approved came up with the fantastic letter recognition game. टॉडलर ने फिर और एक मेथड बताया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे जो है वो गेम के सहारे वो लेटर को पहचान पाएंगे। स्पेशली रिकमेंडेड फॉर किड्स हु लव नॉकिंग थिंग्स ओवर। कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं ना, व्हेन यू आर सेइंग देम टू सिट क्वाइटली, ओके, और स्टडी क्वाइटली, बच्चे को आप बोलिएगा कि चुपचाप बैठे रहें, वो पढ़ें, स्वयं अध्ययन करें, लेकिन वो बच्चा करेगा नहीं। हाँ, दे विल डू जस्ट द ऑपोजिट, वो बस बिल्कुल आपका विपरीत करेंगे, वो बार बार बजाना शुरू कर देंगे बेंच को, ओके, और समटाइम्स दे विल स्क्रैच द पेपर और बेंचेस ऑल्सो, वो बेंच में चीसना शुरू कर देता है। हाँ, द प्रिपरेशन इज मिनिमल एंड ओनली रिक्वायर्स ए फुल नोडल, सम पॉप्सिकल्स, लेटर स्टिकर। तो आप ये कुछ दिया गया है, मटेरियल है, फुल नोडल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पोकल स्टिक्स, कुछ डंडे होते हैं छोटे छोटे, जैसे हम आइसक्रीम स्टिक से भी बहुत कुछ ये बना सकते हैं मॉडल। उसी तरह यहाँ पे पॉप्सिकल बताया गया स्टिक एंड लेटर स्टिकर्स बताया गया है। वंस यू हैव मेड द लेटर्स ऑन दर फुल नोडल फीट, गिव योर चाइल्ड ए बॉल। इसमें बताया गया ना, बच्चे को एक स्टिक बनाइए और अपना जो उनका फीट है पाँव में वहाँ लगा दीजिए, और उनके साथ में आप उनको एक बॉल दे दीजिए। कॉल आउट ए लेटर, आप उसके बाद आप उनको उनका नाम, जो लेटर वो उनको पैर में बांधा हुआ है या चिपकाए हुआ है, आप उस लेटर को पुकारिए एंड सी इफ दे कैन नॉक इट डाउन, और आप देखिए कि वो बच्चा जो है वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रंस बुक इन अ बॉटल। स्टोरी टाइम हैज हैंड्स ऑन एलिमेंट विद डेबोरा जे स्टीवर्ट डिस्कवरीज बॉटल एक्टिविटी। ये डेबोरा जे स्टीवर्ट है जिन्होंने खोज किया है बॉटल एक्टिविटीज़ को। बहुत सारे वो बॉटल लेते हैं, उसे बच्चों को सिखाते हैं। दिस शीट्स एंड कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल लिटरेसी टूल्स कुड बी थ्रोन टुगेदर इन द आफ्टरनून एज अ काइंडस्टिक एडिशन टू योर चाइल्ड्स किड्स फेवरेट स्टोरीज। बॉटल तो घर में बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं, हाँ, तो यू डू नॉट हैव टू बाय दोज बॉटल, आप बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। स्टीवर्ट हैज़ हर स्टूडेंट्स पास द बॉटल अराउंड व्हाइल शी रीड्स देम अ स्टोरी इन द क्लास। जब वो कहानी बताना शुरू करती है क्लास में, तब वो स्टीवर्ट क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना कि जैसे कहानी मैं बता रहा हूँ, मतलब बता रही हूँ, आप क्या करिए, बॉटल को पास करिए। शी रिपोर्ट्स दैट द बॉटल कीप्स हर स्टूडेंट्स काम। बॉटल को जैसे सब बच्चा उनको स्टोरी सिखाया जा रहा है, मतलब सुनाया जा रहा है, बच्चे क्या करते हैं, वो बॉटल को 1 बाय 1 पास करते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी बच्चा जो है वो हल्ला नहीं कर रहा है क्लास में, वो कंसंट्रेशन सुनने में भी है और वो बॉटल को पास करने में भी है, क्योंकि बच्चा क्या है, बिकॉज द चाइल्ड इज एंगेज इन हिज एक्टिविटी, वो बच्चा जो है क्रियाकलाप में एंगेज हो गया है, इसलिए उसके पास दूसरा काम करने के लिए या सोचने के लिए टाइम नहीं है। सी रिपोर्ट दैट द बॉटल कीप्स हर स्टूडेंट्स काम। हाँ, इससे ज्ञात होता है क्या कि बच्चा, वो देखते हैं क्या कि बच्चा जो है बिल्कुल शांत रहते हैं। एंड लिसन द स्टोरी, हर पोस्ट ऑन टीच प्री स्कूल इंक्लूड्स डायरेक्शन मटेरियल इवन पिक्चर्स फॉर इजी रेफरेंस। और इस तरह वो बच्चों को दिशा भी बताना सिखाती हैं, और चीज़ें जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने में, उसका प्रयोग भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकती हैं। जो हम लोग घरेलू, जो घर में जो सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग स्कूल एनवायरनमेंट में ला रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। क्रोकोडाइल सर्कल,
पिक्चर है बीन। क्रोकोडाइल सर्कल मेथड में बताया गया है कि आप एक बीन में पिक्चर बनाइए। नाउ स्कूल एंड कैंपस वी कैन सी अ पिक्चर, मे बी दैट इज द पिक्चर ऑफ डायनासोर। डायनासोर का पिक्चर बना हुआ है बीन में इन आवर स्कूल कैंपस, है ना। तो यू हैव टू मेक अ फेस। आपको क्रोकोडाइल का फेस बनाना है। ऊपर में जो डस्टबिन बनाए हैं उसमें क्रोकोडाइल का फेस बनाना है एंड फिल्ड विथ लेटर्स। अब क्रोकोडाइल का मुंह में आप क्या कीजिए, बहुत सारा लेटर्स मतलब बनाकर उसमें डालिए। एंड सरप्राइज कार्ड्स, स्टूडेंट्स पास द क्रोकोडाइल अराउंड द सर्कल सिंगिंग। बच्चे क्या करेंगे, गेम के रूप में उसी क्रोकोडाइल के इर्द गिर्द वो घूमेंगे गोल गोल और वो गाना गाते हुए जाएंगे। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल डाउन बाई लेक, ये गाना है, ये राइम्स है। वो बच्चा क्या करेगा, वही राइम्स को रिपीट करेगा और उसके अगल बगल घूमना शुरू कर देगा। आई एम गोइंग टू रीच नाइट इन एंड सी व्हाट लेटर यू एट। और वो बच्चा क्या कहेगा कि मैं रात भर मैं तो घूमता हुआ देखूंगा, मैं वहाँ पहुँचूंगा और देखूंगा कि रात में आपने कौन सा लेटर खाया है। ओके, बिकॉज क्रोकोडाइल्स माउथ इज ओपन। जो हम लोग डस्टबिन बनाते हैं उनका मुंह खुला हुआ रहता है और बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग वे में क्या करते हैं, रैपर्स उठा लेते हैं या कोई भी चीज़ खाएं और वो क्या करते हैं, उनके मुंह में जाके डाल देते हैं, उनको अच्छा लगता है। ओके, सो एंड इफ यू आर पुटिंग ए सिंपल डस्टबिन दे विल नॉट यूज। अगर साधारण सा डस्टबिन हम लोग बनाते हैं ना तो बच्चा ध्यान भी नहीं देगा उसकी तरफ, वो क्या करेगा, ही विल थ्रो द रैपर्स इन द ग्राउंड। ओके, सो टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रेन वी हैव टू क्रिएट समथिंग extra surprise cards. Let you repeat a turn, reverse direction or anything else you want to include. Making learning fun include direction, free printable to make things easy. आप और भी इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाकर उस डिब्बे में डाल सकते हैं ताकि बच्चे फिर नया नया चीज़ उसी चीज़ को रिपीट करते हुए सीखेंगे। नेक्स्ट नंबर 8 इज फेदर टिप्स सॉल्ट ट्रे राइटिंग। चिल्ड्रेन गेट टू राइट लेटर्स, नंबर्स, होल वर्ड्स। इसमें विधि में क्या करते हैं, बच्चे लेटर्स लिखना सीखते हैं, नंबर सीखते हैं और होल कार्ड्स। एक ट्रे दिया जाता है, ट्रे ऑफ सॉल्ट विद, उसमें ट्रे में नमक दिया जाता है, बहुत सारा नमक। ओके, एंड ही इज गिवन अ फेदर। फेदर आप समझते हैं ना, फेदर मीन्स पंख, feather tip, and fantastic for motor skill development. This sensory writing experience from preschool will disguise writing practice at playtime. Be sure to give your students some time to explore and salt tray before their task to minimize confusion. Salt tray देने से क्या होगा, नमक वाला ट्रे आप दीजिएगा, पूरा फैला दीजिए और बच्चे क्या करेंगे, खुद ही अपना लेटर लिखना शुरू कर देंगे। ओके, when you see some children, if you have taken them to the beach, अगर आप समुद्र के किनारे ले जाते हैं तो बच्चा खुद ब खुद वो बालू में, रेत में खेलना शुरू कर देता है। he will start writing his name or anything, वो बालू में ही कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देता है। ओके, मे बी he will draw pictures। ठीक है, उसी तरह अगर आप ट्रे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि we cannot get some costable things. So in order to teach the children we can take our homemade things. हम लोग घर का चीज़ ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नमक तो बहुत सस्ता है, we can apply on that। ठीक है, नमक का ये ट्रे में आप पूरा ये कर दीजिए और बच्चे को ये फेदर टिप दे दीजिए, पंख का जो ऊपर भाग होता है ना, उससे बच्चे को पकड़ा दीजिए और वो लिखना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज alphabet ball. As you need for this literacy activity, from play duff to plateau is a beach ball and a sapphire. Simply write letter on the beach ball, spreading them out of the all side to play the games. Have the child throw the ball up in the air and identify whatever letter is facing them. इस विधि में बताया गया है कि आप बॉल दे दीजिए, बहुत सारे बॉल हैं, आप बॉल प्रोवाइड कीजिए बच्चों को, फुटबॉल जो भी होता है बहुत लाइट बॉल, और उसमें लेटर अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। ओके, और आप उसे हवा में ही उछाल दीजिए, थ्रो देम। आप उन्हें किक मारने के लिए कह दीजिए, ऊपर फेंकने बोल दीजिए। देन यू विल आस्क देम व्हाट इज द लेटर रिटन ऑन दैट, उस बॉल में क्या लिखा हुआ है।
देन द चाइल्ड विल कैच द बॉल एंड ही विल से द लेटर। वो बच्चा क्या करेगा, उस गेंद को पकड़ेगा, उछल कर पकड़ेगा और बताएगा आपको लेटर की ये अल्फ़ाबेट है। नाउ नेक्स्ट नंबर 10 इज मैजिक लेटर पेंटिंग। ग्रैब सम वाइट नोट कार्ड्स, ए वाइट क्रेयॉन, वाटर कलर पेंट, ब्रशेस फॉर दिस एक्टिविटी। इसमें इस मेथड में लिया गया है कलर पेंटिंग लेना है जो वैक्स का भी होता है, मोम से बना हुआ है। यूज द क्रेयन टू राइट लेटर्स। अब क्रेयन को यूज कीजिए कि अलग अलग कार्ड्स में कुछ लेटर्स लिखना है। गिव योर किडो सम पेंट ब्रशेस, टेल देम टू बिगिन पेंटिंग ओवर द कार्ड्स। और ब्रश और पेंट दीजिए और उन्हें कार्ड में पेंटिंग करने कहिए। वॉच देयर आइज लाइट अप एंड मैजिक लेटर इज रिवील्ड। आस्क देम व्हाट लेटर इज इट एंड व्हाट साउंड इट मेक्स। जैसे एक पेपर है, वैक्स पेपर होता है। ओके, व्हेन यू आर टेकिंग द वैक्स पेपर एंड इफ यू आर राइटिंग समथिंग, उसके ऊपर से आप कुछ लिखते हैं ना तो खुद ब खुद प्रिंट आउट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द अनदर गेम, चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू इट। नेक्स्ट नंबर 11 इज लेटर मैचिंग आर्चियोलॉजी गेम। द परफेक्ट accompaniment dinosaur theme you need. How we learn allows students to practice letter recognition by playing archaeologists. Drop a few magnetic letters onto the cookie sheet. एक शीट होता है, आप क्या कीजिए, लेटर्स को लिख कर आप ड्रॉप कीजिए, इसमें गिरा दीजिए। राइटिंग द लेटर यू चूज ऑन पीस ऑफ पेपर ऑफ योर स्टूडेंट टू यूज अ की। कवर द लेटर्स इन फ्लोर एंड गिव द किड्स मेक अ ब्रश टू केयरफुली सर्च द साइट फॉर हिडन लेटर्स। आप पेपर को फोल्ड करके उन्हें दिखा सकते हैं और उन्हें सर्च करने कहिए कि कौन सा लेटर गायब है। When they find one, they must match it to their paper key after continuing the hunt. और इसी तरह एक ढूंढने वाला गेम हो गया, बच्चा वो ढूंढता रहेगा, ठीक है, एक पजल की तरह कि मुझे ये अल्फ़ाबेट से मैच करना है, कहाँ गया वो पेपर। Then he will start finding out. Number 12 is mini alphabet sensory beans. This one is specially suited for a classroom environment. ये कक्षा के जो वातावरण है उसमें ये को सूटेड किया गया है। कुड बी स्टेपल अप सेट अप इन अ प्री स्कूल टीचर्स arsenal. Little beans for little hands give the classical sensory beans a twist by using objects that all start the same letter. Tap the letters on the front of each box and let the kids guess the letter as they examine the object. Either way, sensory beans transform from hands-on play activity into the literacy lesson. आज बॉक्स में, हर एक बॉक्स में कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं। आप उस बच्चे को बोलिए कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, उन्हें गेस करने कहिए। नाउ इन दिस मेथड द चाइल्ड विल यूज हिज सेंस। वो अपना जो मानसिक संतुलन है उसको वो यूज करेगा इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। नंबर 13 इज स्नो बॉल थ्रू अल्फाबेट गेम। Snowball you can understand. Tap, paper tap, ping pong balls are all you need for this game. Snowball throwing from poem inspired life. Tap a bunch of letters on to a wall. आप कुछ ऐसे गुच्छे बनाइए, मतलब अक्षर के जो जैसे फूलों के गुच्छे होते हैं, bunch of flowers, like that in the same way you have to prepare a bunch of letters. आप अक्षर के जो गुच्छे होते हैं ना वैसा आप क्रिएट कीजिए और उसे दीवार में स्टिक कीजिए। एंड कॉल आउट द साउंड्स एंड हैव योर किड्स थ्रो द स्नो बॉल एट द लेटर्स रिप्रेजेंटेड। और आप उन्हें जोर से कहिए, उस लेटर का नाम बोलिए और बच्चे को क्या बोलिए, स्नो बॉल से, छोटा छोटा जो स्नो बॉल होता है उससे क्या कीजिए, उस लेटर में उनको थ्रो करने कहिए। एज एन एडेड बोनस किड्स गेट टू वर्क ऑन देयर कोऑर्डिनेशन एज वेल एज देयर अल्फ़ाबेट्स। इसे क्या करता है, बच्चा सही जो अल्फ़ाबेट है उसमें वो ट्राई करेगा कि उसी में वो बॉल जो है उसी में लग जाए। सो इन दिस वे ही लर्न्स टू मेक कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट नंबर इज 14 fingerprints letter. Your little finger paint lovers will enjoy this letter activity. Happy toddler playtime. You will need a washable ink pad. इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको इंक पैड चाहिए, पेपर एंड अ मार्कर। स्टार्ट बाय राइटिंग लार्ज लेटर स्प्रेड आउट ऑन द पेपर। और पेपर में बड़े बड़े अक्षर आप लिखिए। देन इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड टू डीप इनटू देयर फिंगर ऑन द इंक पैड। और आप अपने बच्चे से कहिए कि अपना फिंगर प्रिंट यूज़ करके
आप वो जो इंक पैड दिया गया है आप उसमें हाँ ड्रॉप कीजिए एंड मेक फिंगर प्रिंट्स अलॉन्ग ईच लेटर, और हर एक फिंगर प्रिंट्स में हर एक लेटर होना चाहिए। दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ लिटिल वंस टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग लेटर शेप। इससे क्या करेगा बच्चा जो है वो लेटर जो अक्षर के जो आकृति होते हैं, शेप होते हैं, आकार, वो सीख जाएंगे। इवन इफ दे कांट क्विक ट्रेस विद अ पेंसिल। Number 15 is number match slap game. A deck of cards and duct tape can transform any wall into a correspondence number recognition system. इससे बच्चा जो है नंबर को सीख जाएगा, नंबर सिस्टम को वो सीख जाते हैं। Hands on as we grow came up with an activity for preschooler to slap a pre-tapped card on each matching card on the wall. जो कार्ड जो दीवार में लगे हुए हैं उसे वो स्लैप करना सीख जाते हैं। And this one could even turn into a class scavenger hunt with cards tapped on surface throughout the room. Number 16 is word families with ping pong balls. Word families means होता है अक्षरों का एक परिवार होता है जिसमें पिंग बॉल के थ्रू हम सीख सकते हैं। टीच सिंपल वर्ड्स फैमिलीज, आप बच्चों को सिंपल वर्ड्स फैमिली सिखा सकते हैं विद दिस एक्टिविटी सजेस्टेड बाय फन ए डे। एक मनोरंजन के तौर पे बच्चों को सिखा सकते हैं। गोल्फ ट्री स्टक इन द स्टाइफॉर्म बेस क्रिएट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू इंटरचेंज डिफरेंट लेटर्स। टेल देम टू मेक अ ट्री, आप बच्चों को बोलिए कि एक ट्री बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक EVS सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे 5 क्लास से नीचे, उसमें बच्चों को एक ट्री दिया रहता है उनके बुक में, EVS बुक में, और वहाँ पे डिफरेंट स्क्वायर्स क्रिएट किया जाता है पेड़ के अंदर में ही, और उसमें एक फैमिली ट्री बनाने के लिए कहा जाता है। ओके, सो इन द फैमिली ट्री दे राइट हाउ मेनी फैमिलीज, मतलब हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। वो क्या करेंगे, बच्चे अपने फोटोग्राफ्स भी चिपकाते हैं। ओके, उनके फैमिली में जो जो मेंबर है वो क्या करेंगे, वो उस पेड़ के अंदर में फैमिली मेंबर्स का फोटो चिपकाते हैं। इससे बच्चा समझ जाता है कि उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर एंड हु आर देयर। Number 17 is sorting number stickers. It doesn't get much simpler than this activity created by learning for kids. Draw a grid on a piece of paper. एक ग्रिड ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है पीस ऑफ पेपर में, लाइनिंग जो जिसपे अंदर में डब्बा भी क्रिएट हो सके, बहुत सारे, जैसे हम लोग मैथ्स कॉपी में यूज करते हैं। एंड प्लेस अ नंबर इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में, जैसे मैथ्स कॉपी जो होता है बच्चों के लिए। ओके, सो आप उन्हें कहिए कि आप उसमें हर एक बॉक्स में नंबर डालें। एंड प्रोवाइड योर स्टूडेंट्स विद अ शीट ऑफ नंबर स्टिकर, आप उनको एक नंबर स्टिकर भी दीजिए उनके हाथ में। देन लेट देम मूव द नंबर्स इनटू द बॉक्स विद द मैचिंग नंबर, और जो बच्चा जो ग्रिड में जो बॉक्स में वो जो नंबर वहाँ पे प्लेस किए हैं उसमें आप बोलिए कि वही स्टिकर जो आपके हाथ में है स्टिकर, जैसे 1 2 3 4, तो उसी अल्फ़ाबेट मतलब ये नंबर वाइज नंबर सिस्टम में आप क्या कीजिए, उसको वहाँ जाकर चिपकाइए। लेट देम मूव द नंबर्स इनटू द बॉक्स विद द मैचिंग नंबर। आफ्टर ऑल द नंबर्स आर यूज्ड अप, एनकरेज देम टू राइट ईच नंबर देमसेल्फ इन द कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स। और इसी तरह हर एक बॉक्स में आप उन्हें कहिए कि बारीकी से सभी जितने भी स्टिकर में जो आपको नंबर्स मिले हैं, आप उसको हर एक बॉक्स में ग्रिड लाइन में उसको भरते जाइए। देन ही विल लर्न दैट विच नंबर कम्स आफ्टर दैट और बिफोर दिस नंबर। वो बच्चा काउंटिंग करने के लिए भी सीख जाएगा कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है, ये कौन सा पहले आता है। नंबर 18, अल्फाबेट रॉक्स। इफ़ यू हैव द टाइम टू कलेक्ट 52 रॉक्स, अगर आपके पास समय है कि आप 52 रॉक्स जो पत्थर होता है ना, वो आप अगर जमा कर पाते हैं, दिस अपर केस एंड लोअर केस लिटरेसी एक्टिविटी बिगिन इन अ ग्रेट आउटडोर्स। ये जो आपके घर के बाहर ही मिल जाएगा,
एंड वॉश द रॉक्स आप क्या कीजिए, उस जो भी पत्थर आप लाए हैं छोटे छोटे उसको आप धो लीजिए। एंड राइट एन अपर केस लेटर ऑन वन साइड, और उस पत्थर जो है छोटे से टुकड़े में आप जो लाए हैं उससे क्या कीजिए, उसमें लेटर्स लिख दीजिए। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर ऑन द अपोजिट साइड, और नीचे वाले भाग में आप जो बाकी जो लेटर्स हैं आप उसको लिखिए। देन शो वर्ड्स ऑन पिक्चर्स ऑन इंडेक्स कार्ड्स एंड चैलेंज किड्स टू क्रिएट द वर्ड्स। होम ग्राउंड फ्रेंड सेज द रॉक्स वेट एंड टेक्सचर वॉज अ बिग हिट विद हर लिटिल वंस। वो कहते हैं ना, अगर छोटे छोटे जो पत्थर हैं आप उसमें लेटर्स लिखते हैं या अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखते हैं तो उससे भी बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। नंबर 19, ट्रिपल ट्रेसिंग नेम फन। अनदर ग्रेट एक्टिविटी हैंड्स ऑन। दिस विल गिव योर लिटिल वन ट्रिपल द फन while practicing name writing. Start by writing their name in large letters with a highlighter on a piece of paper. अगर बच्चों को आप उनका नाम सिखाना है, उनको नाम लिखने नहीं आता है, तो आप इसे भी सिखा सकते हैं। हाँ, यू कैन यूज़ द हाईलाइटर। जैसे हाईलाइटर हम लोग पेन यूज़ कर हाईलाइट करने के लिए, ओके, वो क्लियरली दिखाई दे अल्फ़ाबेट, तो उसे आप हाईलाइटर यूज़ कीजिए पेपर में। फर्स्ट आस्क देम टू ट्रेस द हाईलाइटेड लेटर्स विद अ पेंसिल। पहले तो आप उसे ट्रेसिंग करने बोलिए, आप उससे दोहराने बोलिए जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। देन हैव them trace the letter with glue followed by an do steps 2 3 one letter at a time to avoid sticky mess। आप उसे कम से कम 2 या 3 बार उसको दोहराने कहिए। दिस ट्रिपल reinforcement will help the child learn their names later। बार बार दोहराने से क्या होता है, बच्चा वो अपना नाम भी लिखना सीख जाता है। एंड लीव them with a fun craft at the end।